چھوٹی گزارش کرتا ہوں، پیچھے والے حضرات قریب آ جائیں، بالکل قریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ محفل کا آپ کو پورا مزہ آئے گا۔ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی بیٹھا کرتے تو قریب ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ آج آپ کو رات بھر ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، آپ گھر جانے کا آپ کو سوچنا نہیں ہے۔ یہ نورانی اور روحانی رات میں ایک عظیم پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے، بالکل اہتمام کے ساتھ بیٹھے رہیں، قریب ہو کر بیٹھ جائیں، جگہ خالی نہ رکھیں بیچ میں، اور شرمائیں نہیں، بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بآواز بلند نوجوان پیچھے دیکھا لیکن بیٹھے ہوئے قریب آ جائیں، بالکل قریب آ جائیں، پڑھیے لا الہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثناخوان رسول کو پیش کر رہا ہوں، خوش آواز خوش لہر۔ الحمدللہ پچھلے سال ہندوستان کے مختلف شہروں میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جنہیں موقع ملا ہے۔ میری مراد شیخ حسن محی الدین رشید خالدی سے ملتمس ان کے تشریف لائے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نام پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو حضور سے محبت ہے وہ بابا سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول
ایک پھول مل جائے عقیدتوں کا، ایک پھول مل جائے مجھے سلیقہ دے رسول مل جائے صلی اللہ علیہ تمہارے قدموں کی برکتوں سے میری زندگی آج زندگی ہے، بڑی صلی اللہ علیہ اللہ
بھی زبان پر آیا نہیں، قربان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اب اتنا دیا، بن مانگ دیا اب اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے گھبرائے کیوں، ہم ان کے گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالق پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالق پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر ہے، یہی میرے پیش نظر ہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جو گلے لگائے غدوں کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، جو گلے لگائے سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے سقی کا اصول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ فضل رب العلا اور کیا سبحان چاہیے، اللہ۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا سبحان اللہ، فضل سبحان اللہ۔ رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ
جن کے ہاتھوں میں ہے آئے وہ آئے روز جزا، اور کیا چاہیے ہم کو اپنی غلامی کی دیتے سند، آقا ہم کو اپنی غلامی کی دیتے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے ہم کو اپنی غلامی کی دیتے سند، ہم کو اپنی غلامی کی دیتے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ گھر کی چولی میری میرے سرکار نے، بھر کے چولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا کیا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یہ تھے محمد رشید خانوی جو بارگاہ صدر مام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ نام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بلا تاخیر جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں کہ شاعر بڑی خوب انداز میں حضور کی ثناخوانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے زبان سے لا کہو لا الہ الا اللہ، زبان سے لا کہو لا الہ الا اللہ، محبت ذیشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان اشعار کے ساتھ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا شیخ خالد محی الدین نظامی قادری کامل الحدیث جامع نظامیہ سے ملتمسوں کی تشریف لائے، اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله جل وعلا في شأن نبيه وحبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ نہایت ہی عظیم بابرکت موقع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزہ معراج کا، اور یہ وہ معجزہ ہے جو
جو حضور پاک علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور جو شان و عظمت عطا فرمائی ہے، وہ کسی نبی اور رسول کو ایسا رتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کی ساری مخلوق میں رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز عطا فرمایا ہے آج کی رات معراج النبی کا، یہ اعزاز اس سے پہلے کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے معجزات کی تعداد وہ 1000 ہے، اور کسی نے کہا کہ 2000 ہے، کسی نے کہا کہ 3000 ہے، اور پھر کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کی تعداد 1,00,000 ہے۔ عزیزان گرامی، اور جب دیکھا گیا تو یہ قول بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے معجزات 3,00,000 ہیں۔ عزیزان محترم، تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو میرے نبی کے معجزوں کو؟ 1000، 2000، 3000، لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ میرا نبی سرتابہ معجزہ ہے، میرا نبی سرتابہ معجزہ ہے، اس کی ہر گھڑی معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ قرآن مجید ہے، جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ دائمی معجزہ ہے، ابد الآباد تک رہنے والا معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ وہ معجزے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج النبی، معجزے معراج اس لیے بڑا ہے کیونکہ یہ ایک معجزہ نہیں ہے، اس میں کئی معجزے ہیں، اس میں کئی معجزے ہیں، سینکڑوں معجزات مل جاتے ہیں تو ایک معراج ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ سینکڑوں معجزوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہا گیا بڑا معجزہ معجزہ معراج النبی ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رب ذوالجلال نے کس انداز سے فرمایا ہے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ، اشارات کے ساتھ، دونوں طریقوں سے فرمایا، اور کل 5 مقامات قرآن پاک میں سے جہاں پر معراج کا تذکرہ کیا گیا، اور 3 سورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جس میں معراج کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، سب سے اہم بات تو یہ ہے اس کی اہمیت اور اس کی بزرگی و فضیلت کے اظہار کے لیے عزیز دوستو، رب ذوالجلال نے صرف حضور کی معراج کے واقعے کے بیان کرنے کا اہتمام ہی نہیں فرمایا، بلکہ رب کریم نے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورہ اسراء رکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج والی سورت۔ 15ویں پارے میں جو سورت ہے جس سے قرآن پاک 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس کی تلاوت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو یہ جو سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام اسراء ہے۔ اور اسراء کس کو کہتے ہیں؟ الاسراء والمعراج۔ اسراء کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر،
अज़ीज़ान मोहतरम, अब आपने देखा कि कुरान मजीद में इसका तज़किरा कैसे आया है। जगह जगह रब्बे ज़ुल जलाल ने इसका एहतमाम फरमाया। यूं ही जिक्र नहीं कर दिया, बल्कि एक सूरत में उसका तज़किरा फरमाया और फिर सूरत का नाम भी जो है उसकी निस्बत से रख दिया। और फिर उस सूरत की इब्तिदा अज़ीज़ान मोहतरम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी उस वाक़े मेराज से ही। और फिर सूरह नजम में तज़किरा किया गया। तो इस तरह अज़ीज़ान गिरामी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह अस्रा 15वें पारे में और सूरह नजम में और सूरह ज़ुहा में इस तरह रब्बे कायनात में मुख्तलिफ मक़ामात पर जो है शब मेराज का तज़किरा फरमाया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़े को तफ़सीलन बयान फरमाया। सहाबा इकराम हुजूर के तरफ सामने होते, हुजूर उनसे मेराज का वाक़या बयान फरमाते। अब इसके गवाह बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ, नसाई शरीफ, मुवत्ता इमाम मालिक को देख लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी सैकड़ों किताबें लिखी हदीस की, वो वाक़े मेराज से बरी भी नजर आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े मेराज का खुद एहतमाम फरमाया। रब्बे कायनात ने भी तज़किरा किया और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तज़किरे मेराज फरमाया। और फिर जब ये मालूम हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाक़े मेराज को बयान फरमाया और आगे चलते हैं सहाबा इकराम। अब लोग को ये ज़हन में ख्याल आए कि वे सहाबा इकराम करे क्या। अजीज दोस्तों, वाक़े मेराज जो हद तक पहुंचा है, वाक़े मेराज की जो अहादीस हद तक पहुंची है, उसको रिवायत करने वाले 1, 2, 3 सहाबा नहीं है, 45 सहाबा इकराम ने वाक़े मेराज की रिवायात को बयान किया। कसरत से ये वाक़या बयान किया गया, 45 सहाबा इकराम। तो अब पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान गिरामी कुरान पाक में, हदीस मुबारका में, सहाबा की जिंदगियों में जहां देखो हुजूर की मेराज नजर आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये देखते हैं कि वाक़ई मेराज को बयान फरमा दिया। क्या इस रात की इबादत के हवाले से भी हुजूर ने कुछ इरशाद फरमाया है? इस रात में एहतमाम किया जाता है और खुसूसी एहतमाम किया जाता है। वे किसी और रात में इशा की नमाज में इतने लोग तो जमा नहीं होते। शब मेराज की इशा की रात तो वो बड़ी शान और शौकत वाली होती है। तो आखिर बात क्या है? तो बोले बात ये है कि जिसका एहतमाम खुदा करे और खुदा का बंदा न करे, वो नहीं सकते। जब उसका एहतमाम अल्लाह ताला कुरान पाक में करे और खुदा के बंदे न करे, वो नहीं सकता। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने जो एहतमाम फरमाया है, बस उसी अज़ीज़ान मोहतरम रात की बरकतों को समेटने के लिए खुदा के बंदे भी उसके घर में जमा हो जाते हैं। जिस बाबरकत तज़किरे से कुरान पाक में अल्लाह ने जो है मेराज का तज़किरा फरमाया है, तो उसकी बरकतों को हासिल करने के लिए अल्लाह के बंदे भी जमा हो जाते हैं। और जिसका तज़किरा हुजूर ने फरमाया, फिर सहाबा ने किया, तो फिर क़यामत तक आने वाले सारे मोमिनीन, सारे जो है अज़ीज़ान गिरामी मुसलमान ये करते रहेंगे। इसलिए कि जब तक कुरान है वाक़े मेराज रहेगा, और जब तक मेराज का जिक्र रहेगा, जब उस वक्त तक मेराज का तज़किरा होता रहेगा, मेराज का एहतमाम होता रहेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चुनांचे बात ये है कि मेराज के हवाले से आप मुख्तलिफ किताबों में देखिए, हदीस मुबारका मिलती है। रात में जागने, रात में एहतमाम करने, रात में इबादत करने के हवाले से मुख्तसरन चंद इशारे दे रहा हूँ, वरना बड़ी तफसील है इसकी। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, जामे तिरमिज़ी की हदीस मुबारका है। आप 3895 हदीस का नंबर है, आप नोट कर लीजिए। 3895 की हदीस का नंबर है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो रात के जागने को लाजिम कर लो। हुजूर हुक्म दे रहे हैं
کیونکہ یہ رات کا جاگنا، شب بیداری تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں اور یقیناً یہ شب بیداری اللہ کی بارگاہ میں قربت کا وسیلہ ہے. پھر فرماتے ہیں ایک اور فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یہ شب بیداری برائیوں سے باز رہنے کا سبب ہے. پھر فرماتے ہیں چوتھی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یہ شب بیداری گناہوں کا کفارہ ہے. پھر فرماتے ہیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ جو لوگ راتوں میں جاگ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ رات کا جاگنا، یہ شب بیداری جسم سے بیماریوں کو دور کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے. عزیزان محترم، آپ نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت، اب اس سے بات واضح ہو گئی کہ حضور رات میں جاگے اور عبادت بھی کیے اور خود عبادت کرنے کا حکم بھی دیا، اور پھر اس کی عظمت کو، فضیلت کو بیان بھی فرمایا کہ شب بیداری کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں امام بہقی کی کتاب شعب الایمان کھول کر دیکھیں، اور اسی طرح امام بہقی کی کتاب فضائل الاوقات کھول کر دیکھیں. عزیزان محترم، جامع الاحادیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کھول کر دیکھیں، کنز العمال کھول کر دیکھیں. آپ عزیزان گرامی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب حلیۃ الطالبین کھول کر دیکھیں صفحہ نمبر 182 پر. اور اسی طرح عزیزان محترم حدیث کی دیگر کتابوں میں، اور ہمارے ملک کے بڑے عظیم محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے صفحہ نمبر 70 پر بیان فرماتے ہیں یہ روایت کو، اور کتاب کا نام آپ نے کیا رکھا؟ ما ثبت بالسنہ، یعنی وہ جو سنت سے ثابت ہے. اب سنت سے کیا ثابت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سنت سے یہ ثابت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رجب میں ایک ایسا دن ہے اور ایک ایسی رات ہے جس نے اس دن میں روزہ رکھا اور اس رات میں قیام کیا، گویا اس نے 100 سال روزے رکھے اور 100 برس عبادت کی. اور وہ رات رجب کی 27ویں رات یعنی شب معراج. تو عزیزان گرامی، اب بات واضح ہو گئی کہ اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت کو بیان فرمانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور انہی کتابوں میں جس کا حوالہ دیا اسی میں کہیں پر 11 اور کہیں پر 12 حدیث کا نمبر ہے، کہیں پر 3850 تو کہیں پر 851 حدیث کا نمبر ہے. یعنی ایک نمبر پہلے وہ حدیث ہے اور ایک نمبر بعد یہ حدیث مبارک ہے. عزیزان محترم، فرمایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنے والے کو 100 برس عبادت کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اور وہ رات ماہ رجب کے ختم ہونے سے 3 دن پہلے یعنی 27ویں شب ہے، یعنی شب معراج. پھر فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں 12 رکعت نماز پڑھے اور 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اور اس کے بعد وہ اپنے دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، بھلائی کے لیے دعا کریں اور دوسرے روز روزہ رکھیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرے گا سوائے
یعنی کہ خلاف شرع والے، یعنی کوئی حرام کام کی طلب نہ کرے، بس ہر اس کی خواہش پوری کی جائے، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے آج کے اعمال، آج کی عبادات۔ تو احادیث مبارکہ میں رات میں جاگنے کا بھی حکم ہے، احادیث مبارکہ میں رات کی عبادت کا بھی تذکرہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں بھی معراج ہے، حدیث میں بھی معراج ہے، رسول پاک کی زندگی میں بھی معراج ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی معراج ہے، تو پھر ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ ہماری زندگی میں بھی معراج ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، صحابہ کرام صرف معراج کی رات نہیں حضور کے قریب رہتے تھے، وہ تو راتوں کی برکتوں اور اہمیتوں کو حضور نے جو عظمتوں کو بیان کیا تھا ان کو بے شمار باتیں معلوم ہوئی۔ عزیزان گرامی، وہ تو اس کی قدر ایسے جان لیے کہ عزیزان محترم وہ تو کوئی رات نہیں چھوڑتے تھے۔ عبادت، رات میں کھڑے رہنے کی عبادت کی فضیلت اور عظمت صحابہ کو ایسے معلوم ہو گئی تھی، وہ اس کے ایسے جاننے والے ہو گئے کہ وہ کوئی رات نہیں چھوڑتے تھے۔ بھلا شب معراج کیسے چھوڑیں گے، بھلا شب برات کیسے چھوڑیں گے، بھلا شب قدر کیسے چھوڑیں گے؟ وہ تو کوئی رات نہیں چھوڑتے تھے۔ شب جمعہ کیسے چھوڑیں گے، رجب کی پہلی رات کیسے چھوڑیں گے؟ عزیزان محترم، وہ تو کوئی رات نہیں چھوڑتے۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رات کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کا عالم یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اول وقت میں وتر کو ادا فرما لیتے تھے، جیسا ہم لوگ ادا کرتے ہیں وتر کی نماز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں رات میں پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو دو رکعت کر کے نماز پڑھا، دو رکعت کر کے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق عنہ کی رات کی عبادت کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی راتوں کی کیفیت کیا ہے؟ زید بن اسلم بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک اپنی موطا میں جو ہے عزیزان گرامی اس کو ذکر فرماتے ہیں، حدیث نمبر 259 پہ دیکھیں، فرماتے ہیں موطا شریف میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت کرتے رہتے، جب تک جی چاہتا دل چاہتا کھڑے کے کھڑے رہتے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا، تو پھر اپنے گھر والوں کی طرف توجہ کرتے اور گھر والوں کے پاس جا کر بچوں کو، اہل و عیال کو صلاۃ کہہ کر اٹھاتے اور پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ کہ فرماتے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ عزیزان محترم، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کا معاملہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، آپ بھی راتوں میں قیام کرتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں اور آخری حصے میں پتہ چلا کہ اپنے گھر والوں کو اٹھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جاگنے کی راتوں کا عالم دیکھیے، ہم تو صرف 3 جاگنے کی رات کی بات کر رہے ہیں، وہ تو عزیزان محترم زندگی کی ہر رات جاگنے کی رات بنا دی۔ دوستو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جاگنے کی راتوں کا تذکرہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں، موجب الکبیر میں امام طبرانی اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اور ایک رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، ہر رات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ راتوں کی عبادت، یہ راتوں میں عبادت کرنا، راتوں کو روشن کرنا۔ عزیزان گرامی، حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی کیفیت کو دیکھیں۔ سیرت علی ابن ابی طالب کتاب ہے، اس میں جو ہے آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ عزیزان محترم، بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے آ کر وہ اشتر نقی اس کا نام بتایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے اور رات میں آ کر دیکھا کہ امیر المومنین رات میں کیا کرتے ہیں، آپ کی صبح تو معلوم ہے، ذرا رات کی بھی خبر لے کہ رات کیا ہوتا ہے۔ جب رات میں امیر المومنین کے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امیر المومنین نماز میں کھڑے تھے،
क़याम अल-लैल में है, देख कर जो है बोला कि रातें भी बेदार, दिन भी रोशन, बात क्या है? जब हजरत नमाज से फारिग हुए तो उसने कहा कि हजरत रातें इबादत में, दिन रोजे में, दिन से रोजा, रात में क़याम, रात दिन बड़ी मशक्क़त करते हैं आप। तो हजरत ने जवाब में कहा कि बाबा आखिरत का जो सफर है वो बड़ा तवील है, इसके लिए जरूरी है कि हर इंसान रातों में जागे, शब बेदारी करे और खुदा के हुजूर खड़ा है। तो अज़ीज़ान महतरम, आप अंदाज़ा लगाएं तो हमारे खुलफाए राशिदीन का अमल ये रहा, हमारे सहाबा इकराम का अमल ये रहा। तो इस अजीज दोस्तों, ये बातों को आप हमेशा याद रखें, अपने बच्चों तक पहुंचाएं। आज मुख्तलिफ बातें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आ जा रही है और कोई ये कह रहा है कि भाई शब-ए मेराज इज द फेस्टिवल ऑफ एशिया, इंडिया पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, मेराजुन नबी इंडिया पाकिस्तान का नहीं, मेराजुन नबी तो अरब के बादशाह अज़ीज़ान गिरामी को रहमतुल लिल आलमीन नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपका एजाज़ है। और सारे आलम इस्लाम ने इसे निहायती मसरतों के साथ, निहायती एहतमाम के साथ, निहायती खुशियों के साथ इसका एहतराम अमल में लाया जाता है। अज़ीज़ान महतरम, अब ये बात हो गई, आगे चलते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मौजिज़ा, मेराजुन नबी मौजिज़ा है। मौजिज़ा अल्लाह ताला हर नबी को मौजिज़ा अता फरमाते हैं। क्यों? इसलिए अता फरमाते हैं ताकि वो कौम नबी की अज़मत से वाकिफ हो जाए, नबी की शान से वाकिफ हो जाए, नबी के पावर से वाकिफ हो जाए। अज़ीज़ान महतरम, जब भी कोई कौम इतराती है, अकड़ती है और हिमाकत करती है, तकब्बुर करती है, तो फिर अल्लाह के नबी के मौजिज़े के सामने उसे आजिज़ होना पड़ता है। अल्लाह ताला इसलिए नबियों को मौजिज़ा अता फरमाए कि ये असबाब पर इतराने लगे, ये अपनी दुनिया पर इतराने लगे, ये गुमराही पर इतराने लगे, ये अपने फुजूल व उलूम पर इतराने लगे। तो नबी मौजिज़ा पेश कर इनकी इस हिमाकत का खात्मा करें, इनकी इस तकब्बुर का खात्मा करें और अपनी अज़मतों को बताए और अपनी शान को बताए और नबी के पावर को बताए और लोगों को रिज़्क़ व हिदायत अता करें। अज़ीज़ान महतरम, चुनांचे हर नबी को अपने ज़माने के मुताबिक मौजिज़ा अता किए गए हैं। अज़ीज़ दोस्तों, चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का दौर, आपकी कौम को पत्थरों को तराशने में बड़ी माहिर थी, जबरदस्त जो है पत्थरों को तराशती थी और पहाड़ों को ऐसे तराशती कि पहाड़ों में मकान बना लेती, घर बना लेती, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया, वतन ही तुमिल जिबाला बियूता, कि वो जो है पहाड़ों को घर बना देती। पहाड़ है बड़ा, उसको तराश कर, खोद कर, अंदर कमरे, अंदर हुजरे, अंदर अपने रहने सहने बैठने के सारा जो है अज़ीज़ान गिरामी इंतजाम कर देते। पहाड़ों को, बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतनी मेहनत और मशक्क़त क्यों कर रहे हो? तुम्हें इसलिए थोड़ा ही पैदा किया गया कि तुम यहाँ पर जो ऐसे मजबूत मकानात बनाओ कि तुम्हें यहाँ से जाना ही नहीं? यहाँ से तो हर किसी को जाना है, जब यहाँ पर आए तो यहाँ से जाना भी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो एक ना सुने, पहाड़ों में मकानात बनाते, रात दिन यही कारीगरी करते, उनको बड़ा फख्र था कि हमारे पास भी कोई है, पहाड़ को तराश कर मकान बनाते। एक आदमी आ गया उस कबीले और उस आबादी में, उस इलाके में, तो उसको खड़ा कर देखते ही देखते उसका स्टैचू, उसका मुजस्समा बना दिया। ये था सालेह अलैहिस्सलाम का कमाल। मुजस्समा तैयार हो गया, मुजस्सिमे बनाकर इतराते, फख्र करते और कहते भला हमारे वैसा भी कोई है दुनिया में? देखो पहाड़ को अभी एक मिनट में इंसानी रूप और शक्ल देते, मुजस्सिमा बना दिया। तो अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा कि सालेह जरा जाओ, जाकर अपना मौजिज़ा दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा
देखा आपने, नबी की ताकत और अजमत को बता दिया गया, नबी का पावर जाहिर हो गया, और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का फख्र तकब्बुर झुकना शुरू हो गया। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना, अजीज दोस्तों, अब ये दौर का तकाज़ा ये था कि यहाँ पर जो है जादूगरी ज्यादा थी, जादूगर जगह जगह थे, जहाँ देखो जादू का बोलबाला, जहाँ देखो जादू का बोलबाला, यहाँ देखो वहाँ देखो इधर देखो, हर घर में एक जादूगर। फिरौन के दौर में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर घर में एक जादूगर था। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो रब्बे इज़्ज़त जलाल ने उन्हें उस जमाने के तकाज़े के मुताबिक मुअजिज़ा अता फरमाया। आप भी यदि अपना आसा लेकर आए, और उसके बाद फिरौन ने कहा कि मूसा अगर तुम नबी है तो फिर ठीक है, हमारे जादूगरों से मुकाबला करो। वजीदा ने कहा, आपने कहा ठीक है। अब उनके जादूगरों ने कहा कि मूसा आप शुरू करते हैं या हम शुरू करें? आपने कहा शुरू। जादूगर रस्सियां फेंके, देखते ही देखते वो सब सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं ये तो सांप आ रहे हैं, अब क्या किया जाए? इधर से उधर से उधर से पूरे सांप आ रहे। आपने असा छोड़ा, क्या किया? अपना असा मूसा छोड़ा, छोड़ते ही वो अजदहा बन गया और सारे सांपों को देखते ही देखते निकल गया। उसके बाद खड़ा हो गया और उसके बाद मुंह खोला और यूं लग रहा था कि अभी कुछ ही देर में फिरौन और उसके महल को निकल देगा, बल्कि हाले अपनी ज़बाने हाल से ये कह रहा था कि भला मूसा कलीमुल्लाह जैसा भी कोई है? रस्सियों को सांप बनाना कमाल नहीं है, असे को अजदहा बना देना कमाल है। अजीज़ान मुहतरम, ये जादूगरी बाहर खत्म हो गई और उनका फख्र टूट गया। अल्लाह ताला ने इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों के मुकाबले में ये ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई और जादूगरों का फख्र चुकना शुरू हो गया। एक न चली मूसा के सामने। अजीज दोस्तों, इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का दौर था, मेडिसिन का दौर था और तबीब फलसफी उनका बहुत चर्चा था, बहुत शोहरत थी, बड़े फेमस थे तबीब। और ये आलम कर दिया था उन्होंने इलाज कर करके कि चैलेंज करते थे कि सिवाय एक दो बीमारी के हर बीमारी का इलाज है। वो लोग कहते कि अगर कोई बीनाई कमजोर हो जाए तो हम बीनाई टेस्ट कर देंगे, मादर ज़ात नाबीना है तो वो बीना नहीं करते थे, लेकिन अगर किसी की बीनाई चले जाती तो वो इलाज करके बीना कर देते। तो उनको बड़ा फख्र था कि अपनी जो है अपनी तारीफ पे, अपने हुनर पे, अपने मेडिसिन के जो है अजीज़ान ग्रामी प्रोफेशन पे तो इतने डॉक्टर थे, इतने तबीब और हुक्मा और फलसफी थे कि ऐसा इलाज करते कि हर बीमारी का इलाज करते थे, हर बीमारी का इलाज होता। अब इस अजीज़ान मोहतरम, जब ये बात ये चर्चा आम हो गया तो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। अब ईसा अलैहिस्सलाम जब आए और अपनी नबूवत का दावा किए तो वो कहने लगे, ईसा भला हमारे खाल में आप कुछ है? हम तो हर बीमारी का इलाज करते हैं, अगर आप नबी है तो फिर कुछ मौजिज़ा दिखाइए, मादर ज़ात नाबीना को बीना करके दिखाइए। आपने कहा ठीक है, लेकर आओ। आपने उसके आंखों पर अपना हाथ फेरा, वो बीना हो गया। हैरान हो गए, ये क्या हो गया? जिस पर फख्र था उनको और जो काम वो नहीं कर सकते थे नबी खुदा ने कर दिया। और ये इलाज करने वाले डॉक्टर अजीज़ान ग्रामी तबीब वो उस पर फख्र कर रहे थे, ये मरीज का इलाज करते 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 वहां तक करते कि मर जाता और बाद में कहते कि इलाज जारी था, चालू था, मरीज मर गया, गुजर गया। लेकिन नबी की शान ये है कि अजीज दोस्तों, जहां पर डॉक्टर रुक जाते हैं और जब इंसान गुजर जाता है तो ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो आपने उस गुजरे हुए मुर्दों को जिंदा कर दिया। अजीज दोस्तों, हैरान हो गए, ये क्या हो गया कि बोले तुम इलाज
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजिज हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मूसा अलैहिस्सलाम ने 200 साल पुराने मुर्दे को जिंदा करा दिया। अजीजान मतलब तो आप अंदाजा लगाए। तो इस तरह जो है लाज नाम का एक शख्स था जिसको आपने जिंदा कर दिया था, और वो आराम से खाता पीता मुस्कुराता लोगों के साथ बातें करता फिर रहा था, खुदा की निशानी में गया था, ईसा का मौजूदा था, जीता जाता, लोग देखकर हैरान हो जाते थे। आज उसी के नाम से लकड़ी का पुल में दवाखाना खोला गया था, उसी के नाम से। अजीजान मोहतरम क्यों याद करते ईसाई? बोलते अजीजान गिरामी हमारे नबी की बात तो मानिए नहीं, लेकिन मौजूदे को बराबर मानिए। अरे दोस्तों, दुनिया के पास कोई चारा नहीं है अंबिया की ताकत को कबूल करने के साथ। अजीजान मोहतरम इस तरह जो है हर नबी को उसके जमाने के तकाज़े के मुताबिक मौजूदा अता किए गए। अब नबी पाक वसल्लम का दौर आया। आए अरब का मामला ये था कि बड़ी फसाहत और बलागत में माहिर थे, बड़ी फसी ज़बान बोला करते थे, और उनको अपनी ज़बान पर बड़ा फख्र था। अजीज़ान गिरामी, एक अरब बच्चा गली 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 शोरा था कि हर जगह फसाहत और बलागत इतनी बेहतरीन अरबी बोली जाती, हत्ता कि एक आदमी अगर ठहर जाता तो ठहरे ठहरे 100 शेर बोल देता। अरबी में अशार कहना क्या मलिका, उर्दू बोलना अलग चीज है, उर्दू में अशार बोलना, शायर को तो उर्दू का शायर यानी कि उर्दू का माहिर है। अजीज़ान मतलब वहां तो आलम ये था कि घर घर गली गली शायर था अरबी का हुजूर के जमाने में, और हर बच्चा बात करता तो शेर और शायरी की बात होती, ऐसे बात नहीं होती। वो एक शेर कहता तो जवाब में ये भी शेर कहता, और जब बैठते तो 100 शेर लिख देते। उनको अपनी फसाहत पर, अपनी ज़बान पर, अपनी बलागत पर, अपने इल्मे उरूस पर बड़ा फख्र था। तो अरब कहते थे हम अरबी है और दुनिया अजमी है। अजमी का मतलब गूंगे, अरबी मतलब अहले ज़बान। इनके फख्र का आलम ये हो गया था कि वो लोग बोलते कि अगर दुनिया में कोई ज़बान रखता है तो वो अरब है, और बाकी के तमाम लोग गूंगे हैं। इतना फख्र था। तो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और लाकर अपना कलाम पेश किया। अब फसाए अरब, फसाहत और बलागत में महारत करने वाले जब कुरान पाक को देखे तो अजीज़ान मतलब हैरान और सज्जर हो गए। इसकी फसाहत को, इसकी बलागत को अजीज़ान गिरामी देखकर परेशान हो गए, और फरमाया फतू बिसूरत मिन मिस्री इन कुंतुम सादिकीन। और हुजूर ने ऐलान फरमा दिया अगर तुम अपने दावों में सच्चे हैं कि तुम अहले ज़बान हो तो फिर मेरे कलाम कुरान पाक की छोटी सूरत के बराबर में सूरत लाकर बताओ। मेरे ऊपर जो कलाम अल्लाह नाज़िल हुई है इसकी मिसल पूरी किताब नहीं, एक छोटी सूरत इतना आमेगा के बराबर एक सूरत बनाकर बता। वो आजिज हो गए, नहीं कर सकते, कोई सूरत नहीं लाए। तो उन्होंने देखा कि क्या करें, सीधा इल्जाम लगा दिया। क्या होता है जब कोई मैदान हार जाता है ना तो अब इल्जाम लगाता है। अब इल्जाम लगा दिया कि ये ये कलाम, ये मोहम्मद, ये तो जादूगर है, ऐसा कलाम तो इंसान बना ही नहीं सकता, इंसान ला ही नहीं सकता, ये तो जादूगर है। जब हुजूर पर जादूगर होने का इल्जाम लगा तो हुजूर ने अज़ीज़ान गिरामी जमीन पर खड़े रहकर मक्के की सरजमीन मक्का पर खड़े रहकर अज़ीज़ान मोहतरम चांद को इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अब क्यों इशारा किया? इसलिए इशारा किया था क्योंकि जादूगर की जादू जमीन पर चलती, आसमान पर नहीं चलती। हुजूर ने बता दिया कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं जादूगर नहीं, जादूगर की जादू जमीन पर चलती है और मुस्तफा का जोर आसमान पर भी चलता है। चांद के 2 टुकड़े हो गए, इनके ज़बान खारिज हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम इस तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ये मौजिज़े अब उस ज़माने के तकाज़े के मुताबिक ये सारी बातें हो गई, लेकिन हुजूर की रिसालत और नबूवत आम नबियों की तरह और नबियों और रसूलों की तरह एक ज़माने के लिए महदूद नहीं है।
मोजिज़े मेराज को पेश किया, टाइम और स्पेस के मोजिज़े को पेश किया। जब दुनिया एक दौर मुस्तफा की उम्मत पर ऐसा आएगा हुजूर की नबूवत और रिसालत में कि लोग इंसान जो है कभी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को जाने के लिए 1 महीने का सफर करता था, अब इंसान हुजूर की नबूवत और रिसालत में 2 घंटे में पहुंचा। अब क्या होगा? अब जमाना फख्र करेगा, हमारी रॉकेट पर फख्र है, हमें टेक्नोलॉजी पर फख्र है, हमें स्पीड पर फख्र है, हमें अब दुनिया तो सोच रही है चांद और मरीख में कॉलोनी आबाद करने की बात हो रही है, प्लॉटिंग करने की बात हो रही है। दोस्तों दुनिया किधर निकल गई है? आज दुनिया क्या क्या सोच रही है? तो अजीज़ाने गिरामी, अब हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है नबूवत और रिसालत के लिए यहाँ पर एक बात थी कि नबी आखिरी नबी तो हर जमाने के लिए नबी है, तो फिर आज क्या होगा? अब जमाना फख्र कर रहा है, अमेरिका फख्र कर रहा है, ईसाई फख्र कर रहे हैं, यहूदी फख्र कर रहे हैं, जर्मनी फख्र कर रहा है, बर्तानिया फख्र कर रहा है, फ्रांस फख्र कर रहा है। हमारे पास हथियार है, हमारे पास रॉकेट है, हमारे पास अजीज़ाने गिरामी हमारे पास स्पेस स्टेशन है। रशिया फख्र कर रहा है, सब दुनिया के तुर्की फख्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दुनिया में फिर से फख्र शुरू हो गया है, फिर से दुनिया निकल कर रही है, फिर से दुनिया अपनी ताकतों पर, अपनी काबिलियत पर इतना नहीं है। अब भला कोई है इनके फख्र को तोड़ देने वाला? तो बड़े यकीनन हाँ मुस्तफा है, वो क़यामत तक रहने वाले हैं। और अज़ीज़ाने गिरामी को फख्र को तोड़ने के लिए हुजूर ने वो मौजिज़ा पेश किया जो सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा, और वो मौजिज़ा टाइम और स्पेस का मौजिज़ा है। वो मौजिज़ा मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजिज़े मेराज है। इतना बड़ा मौजिज़ा पेश कर दिया। तो अज़ीज़ाने मुहतरम, आप अंदाज़ा लगाएं ये मेराज का मौजिज़ा किसके लिए पेश करा? इस दौर के लिए पेश करा था जब दुनिया फख्र करेगी, तुम भी खामोश ना बैठना। हुजूर की मेराज के दिन जश्न मनाकर दुनिया को कहना कि अगर रफ्तार की बात करते हो तो हमारे सामने मत करो, कहीं और जाकर कर लो, हम तो मेराज वाले हैं। टेक्नोलॉजी की बात, रॉकेट की बात, रफ्तार की बात, सितारों की बात, आसमानों की बात, सैयारों की बात, चांद की बात, सूरज की बात, दोस्तों कहीं और जाकर कर लो। क्या राजू गोपी को सुना लो, हमें मत सुनाओ। हम कुरान करते हैं जिसमें सूरह शम्स भी है, सूरह कमर भी है, सूरह नजम भी है, और उससे बढ़कर सूरह असरा है। मेराज नबी का वाक़िया जाकर सुनाना है तो उनको सुनाओ जो रामायण पढ़ते बैठे हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं। अरे हमें क्या सुना रहे? हम तो उस नबी के उम्मती और उस नबी के जो है गुलाम है जिनका कुरान सच्चा और जिनकी किताब रोशन और जिसमें मौजिज़े मेराज बयान किया गया है। अज़ीज़ाने मुहतरम, अब आइए बात खत्म करने के लिए चंद साइंस के जो है हवाले से और साइंस की जो है रोशनी में, इनके साइंस की रोशनी में मौजिज़े मेराज को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़े मेराज अता किया गया, और मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा ये कितना बाबरकत और कैसे हुआ जरा देखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम हदीब में आराम फरमा रहे हैं, मक्के मुकर्रमा से रवाना हुए मस्जिद अक़सा तक, फिर वहां से अज़ीज़ाने गिरामी आसमानों की जानिब बुलंद हुए, फिर वहां से 7 आसमानों की सैर की, फिर वहां से जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया, फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, और वहां पर अज़ीज़ाने गिरामी फरिश्तों का हुजूम है कि सब फरिश्ते कह रहे हैं मौला अपने हबीब को बुलाया है, बंदे खास को बुलाया है, हमें भी दीदार की इजाजत अता फरमा दे। अल्लाह ने कहा इजाजत है। फरिश्ते उमड़ पड़े हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने के लिए, हुजूर के दीदार के लिए, हुजूर की खिदमत में ग्रीटिंग्स पेश करने के लिए, हुजूर की खिदमत में अकीदत में अज़ीज़ाने गिरामी फूल निशावर करने के लिए फरिश्ते उमड़ पड़े, और मुंतहा सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्ते छा गए। अज़ीज़ाने मुहतरम, एक अजीब व गरीब नूरानी समा था, और हुजूर की सवारी वहां से आगे बढ़ी
जिब्राइल अमीन जैसा फरिश्ता वो नूरानी मखलूक भी वहां रुक गई, हुजूर और आगे बढ़े। यानी सारे तकाज़े ये नूरो बशर के झगड़े सब रह गए। बशर सातवें आसमान पर, अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह और सारे फरिश्तों के सरदार नूरानी मखलूक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर थक गए, रुक गए, अब आगे नहीं। बोले आगे कौन है? तो बोले हुजूर की शान ये है वो नूर का बशर वो उससे भी और आगे, वो आगे चले और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चले और फिर सातों आसमान अज़ीज़ान गिरामी वो अर्श इलाही को पहुंचे और फिर उससे आगे जना फतदल्ला की मंजिलों को पहुंचे और रब के हुजूर हाजिर हुए और अल्लाह का दीदार फरमाया और रब से नमाज का अजीम तोहफा लेकर पहुंचे। तो ये है वाक़िए मेराज। अब अज़ीज़ान मोहतरम, वाक़िए मेराज इतना सब कुछ हुआ, कितने वक्त में हुआ, कितने दिन में हुआ? तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लैलन का जो है ये जो तनवीन है यहाँ पर ये बता रही है कि ये चश्मे सदद में हुआ। कितने वक्त में हुआ? तो बोले पल भर में हो गया, पल भर में। अजीज दोस्तों, अब आइए इस वाक़े को जरा समझते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में सवारी पेश की गई, बुर्राक, जानते हैं ना? बुर्राक सवारी। और बुर्राक का नाम आप कब से जानते हैं? कब से जानते हैं? जब से वाक़े मेराज सुना, क्योंकि बुर्राक कहीं और नहीं, मेराज में ही समझा गया, पहचाना गया, जाना गया। यहीं से मिला बुर्राक हमको। तो अज़ीज़ान मतलब जरा सोचिए बुर्राक क्या है? बर्क़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। बर्क़ उनके माने हैं रोशनी। बुर्राक बर्क़ की जमा है, यानी रोशनियाँ। वो रोशनी क्या है? वो एक शक्ल पे मुतशक्किल होकर आई, जैसा सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, लेकिन आप जब हुजूर के पास आते तो इंसानी शक्ल में आते, नूर है ना, उसके बावजूद भी इंसानी शक्ल में आते, फरिश्ता है। अगर असल हालत में कोई देख ले तो ठहर सकता, बेहोश होकर गिर जाता। सैयदना जिब्राइल अमीन को देख नहीं सकते, लेकिन आप इंसानी शक्ल में आते थे, मुतशक्किल होकर। हजरत देजा कलमी हुजूर के प्यारे साहबी उनकी शक्ल में आया। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब देजा कलमी आते तो दौड़ते हुए भागते थे, छोटे छोटे थे और जाकर चिमट जाते थे। वो जब आते तो हुजूर के नवासों के लिए, बेटों के लिए कुछ ना कुछ साथ लाते थे। तो लोग जब देखते तो दौड़ते हुए जाते कि आगे देजा कलमी अब कुछ लाए हमारे लिए, दौड़ते हुए भागते थे। बच्चे बड़े खुश होते हैं। अज़ीज़ान मतलब तो इसी तरह जिब्राइल अमीन जब आए, देजा कलमी की शक्ल में आए, तो इमाम हसन इमाम से दौड़ते हुए भागे और उनके गोद में चल गए और जेब में हाथ डालकर टटोलने लगे। तो हुजूर फरमाया बेटो उतर जाओ, ये वो नहीं, वो वाला देजा कलमी नहीं है, ये जिब्राइल है, ये फरिश्ता है। तो पता चला कि फरिश्ता जो है वो इंसानी शक्ल में मुतशक्किल होकर आता है। इसी तरह नूर भी जब हुजूर की खिदमत में पेश की गई सवारी, तो वो सवारी नूर की थी। लाइट एक लाइट होती है, नूर से आगे होता है। वो नूर अज़ीज़ान गिरामी मुतशक्किल हो गया था सवारी की शक्ल में। अब हुजूर जब सवार हुए तो किस पर सवार हुए? रोशनी वाली सवारी पर सवार हुए, बुर्राक पर सवार हुए। अब बात यह है कि अज़ीज़ान मोहतरम, रोशनी में कोई सवार हो सकता? जिस्म रोशनी पर ठहरता, कसीफ है। तो बोले बाबा हुजूर नूर है, इसलिए नूर पर सवार है। तो अज़ीज़ान गिरामी याद रखे, हुजूर सवार हुए और आगे चले। अब जरा अंदाजा लगाए कि जब वो सवारी चली तो पहला कदम रखती तो वहां रखती जहां पर अजीज दोस्तों निगाह की इंतहा होगी, नजर की इंतहा होगी। आप बात को समझ रहे हैं? अब हम देखते हैं नजर की वसअत को, नजर को पहचानने की कोशिश करते हैं, आंख की रोशनी को पहचानने की कोशिश करते हैं।
आंख के देखने की ताकत को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप एक सीधे साधे मैदान में खड़े रहते हैं, जहां पर कोई बाग नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई शजर नहीं, तो आपकी निगाह कहां तक जाती है? दूर तक जाती है। अब साइंस ये बताती है कि इंसान की आंख 576 गीगापिक्सेल्स है। 578 गीगापिक्सेल्स, 576 ये इंसानी आंख की है। अजीज़ान गिरामी, अब जब इंसान देखता है सीधी सादी, अब आजकल देखो क्या फोन लिए तो लिखा हुआ है गीगापिक्सेल्स, यानी कैमरे की देखने की सलाहियत, ताकत। तो आंख, इंसानी आंख की ताकत ये है। तो अजीज दोस्तों, अब जरा देखें, जब इंसान एक खुले मैदान में देखता है तो हजारों मील देख लेता है। खुले मैदान में आप ठहर जाए, कोई झाड़, पहाड़, बाग, चमन कुछ ना हो, तो आप जब देखें तो ऐसे लगता है कि आसमान खत्म हो रहा है। वो सब आसमान लग रहा है, हजारों मील को देख रहे हैं आप। तो ये इंसानी नजर है। और अगर रात में देखे इंसान, रात में अंधेरा हो जाए, डार्क, बिल्कुल डार्क नाइट है, अगर उसमें 30 मील के फासले पर एक मोमबत्ती जलाई जाए, 30 मील्स का मतलब 45 किलोमीटर दूर, यहां से एक मोमबत्ती रोशन की जाए तो इंसान आसानी से देख लेता है। इतनी निगाह है इंसान। 45 किलोमीटर फासले पर रात में एक मोमबत्ती की रोशनी को रोशन कर दी जाए तो आदमी यहां से देख सकता है। और फिर अजीज दोस्तों, जब आसमान को देखता है तो उसे नाइट में, डार्क नाइट में या अगर ना हो तो तारे सितारे नजर आते हैं। आप जरा देखिए, तो ये जो कहकशा है जो हमें नजर आ रही है, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसे कहा जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसको हम देखते हैं, क्या से आप देखते ही बस इसके बाहर से आप आसमान को देखिए, सितारे नजर आते हैं। ये जो गैलेक्सी है, जो हमारी नजर उठी और देखी सितारों को, वो जमीन से जो है 2.6 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। आप अंदाजा लगाएं, 2.6 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी 36 लाख मिलियन दूर है लाइट ईयर्स को। और एक लाइट ईयर, आप जरा अंदाजा करिए, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर का होगा। 9.5 खरब किलोमीटर। एक जो है अजीज़ान गिरामी दूरी सा, रोशनी का सा लाइट ईयर, वो अगर तय करना है तो कितने किलोमीटर होता है? 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। समझ रही बात? तो अब आप आसमान को देख रहे हैं, आसमान कितना है? वो तो 2 बिलियन लाइट ईयर है। वो जो गैलेक्सी नजर आ रही है वो इतनी दूर है, और एक नजर में हम कहां देख रहे हैं? इतनी दूर देख रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए हुजूर की रफ्तार क्या थी। मेराज की रात बुराक में थे, और बुराक उसका दूसरा कदम काम करता था, जहां निगाह की इंतहा होती थी। निगाह की इंतहा का आलम यह है कि आसमान की तरफ उठती है निगाह तो 2.6 बिलियन आगे जाती है। अजीज़ान गिरामी, क्या हो रहा है? आप अंदाजा लगाएं कि एक दूरी साल 9.5 किलोमीटर का हो रहा है, और यहाँ बिलियन की बात हो रही है। आप अंदाजा लगाएं क्या हो रहा है। तो निगाह का यह आलम है कि निगाह पहुंच रही है, जो आज गैलेक्सी को, कहकशा को हम देख रहे हैं जो नजर आ रही है आसमान पर, उसका आलम यह है। तो हुजूर के सवारी बुराक की रफ्तार का यह आलम था। पता चला अब मेराज की रफ्तार का आलम क्या है? लाइट की रफ्तार ये है, और हमारी निगाह की रफ्तार ये है कि निगाह जो है पड़ी तो आसमान पर, अजीज़ान मोहतरम 2.6 बिलियन लाइट ईयर आगे चले जाती है, दूर चले जाती है। और लाइट कितनी दूर? अजीज़ान मोहतरम, तो अंदाजा लगाइए। आज दुनिया कहती है दुनिया के पास सबसे तेज तरीन कोई ऑब्जेक्ट है तो लाइट है, और हुजूर के बुराक की रफ्तार का आलम क्या है?
अंदाजा लगाइए तो पता चला कि हुजूर की मेराज इतनी बुलंद व आला है कि कोई नबी, कोई कौम, कोई जमाना उसका मतलब तकाबुल नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकते, कोई कौम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, कोई ग्रामी कौम मेराज नबी का चैलेंज कबूल नहीं कर सकती। और मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार का आलम ये था अज़ीज़ान मोहतरम, तो आप अंदाजा लगाएं इस शान और शौकत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया है। आज स्पीड की बात की जा रही है, आप हम स्पीड को देख रहे हैं। स्पीड क्या है? सबसे स्पीड ऑब्जेक्ट लाइट है। आप देखिए सूरज की रोशनी आ रही है 147.7 अज़ीज़ान ग्रामी बिलियन किलोमीटर अवे है हमसे सूरज। 8 मिनट 2 सेकंड में रोशनी यहाँ पर आ गई, सूरज की रोशनी इतनी दूर से। अब इसकी रफ्तार, आप हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो फोन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे रफ्तार वाले ये आले हैं। देखिए आप और हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन एक आदमी बाहर लेकर निकलता है, फोन करता है, फौरी कवर से सिग्नल फौरी आता है और कहता है कि जिसको फोन किया गया उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि फोन बंद है, फोन खुला है, फोन में कोसा जो है अज़ीज़ान ग्रामी पैकेज है, ये भी बताया जाता है कि व्हाट्सएप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल जा रही है या नहीं जा रही है। अब रफ्तार का आलम ये है, टेक्नोलॉजी का आलम ये है कि आदमी जब चलते हुए बात करता है तो एक कवर चले जाता है, दूसरे कवर की तरफ सिग्नल मुंतकिल हो जाते हैं और दूसरे कवर से सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। बस वो चंद ही लम्हों में सारे काम हो रहे हैं। ये सारे काम हम चल रहे हैं, काम चल रहा है, सिग्नल तब्दील हो रहे हैं, एक के बाद एक कवर मुंतकिल हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, लम्हों में हो रहा है। पूरी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है कि फोन किस हालत में है, फोन हाथ में है या जेब में है, डाटा खुला है या बंद है। अजीज दोस्तों सब कुछ मालूम हो जा रहा है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि कैसी तरक्की हो चुकी है। अजीज दोस्तों अब जरा आगे चलते हैं। अब पहले का दौर था, हम बोलते कि जो है बयान ये था वक्त को नापने का, तोलने का, घंटा, मिनट और सेकंड। अब वो दौर चलेगा, अब घंटा, मिनट और सेकंड नहीं दोस्तों, सेकंड को भी नापा जा रहा है। आपको मालूम है मैक्रो, मिनी, नैनो सेकंड। नैनो सेकंड का मतलब क्या है? यानी एक सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा, एक सेकंड के 1 अरब टुकड़े किए जाए तो वो एक हिस्सा जो है ना उसको नैनो सेकंड बोलते हैं। ये है आज साइंस तरक्की कर इतनी रफ्तार बता रही है। और यही नहीं, नैनो सेकंड पर रुकी नहीं बात, ज़िप्टो सेकंड। अब जो ज़िप्टो सर्विस जो देख रहे हैं आप, वो इसलिए ज़िप्टो नाम रखा के रफ्तार, वो जो है सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड से भी कम होता है, उसको ज़िप्टो कहते हैं। आप अंदाजा लगाएं, रफ्तार का आलम ये हो गया। दुनिया जो है इस कदर सेकंड के भी हिस्से कर रही है। और गूगल पर हम सर्च करते हैं, एक सेकंड में गूगल ये बताता है कि 99,000 सर्च होते हैं एक ही सेकंड में। दुनिया में एक सेकंड में 99,000 सर्च होते हैं। हालत देखिए रफ्तार। तो अजीज दोस्तों जब ये स्पीड को देखे, जब ये रफ्तार को देखे, दुनिया की इस तरक्की को हमने देख लिया, तो अब आइए हुजूर की मेराज को देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ान ग्रामी मक्के मुकर्रमा खाने काबा हदीब के पास आराम फरमा रहे थे। वहां से निकले, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुज़ू फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए, रवाना हुए, मदीना अक़सा पहुंचे। वहां पर नबियों की इमामत फरमाई। फिर आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उन्होंने खुतबा दिया और नबी पाक की अज़मत को बयान किया। नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए, खुतबा दिया, हुजूर की अज़मत को बयान फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, खुतबा दिया, अज़ीज़ान मोहतरम हुजूर की अज़मत को बयान फरमाया। कुल अंबिया इकराम खुतबे देते रहे और हुजूर ने भी खुतबा दिया और अल्लाह की तारीफ की और अपनी शान और अज़मत को बयान फरमाया। उसके बाद हुजूर वहां से रवाना हुए और सातों आसमानों की तरफ, आसमान की तरफ बुलंद हुए। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, दूसरे आसमान पर यहया और ज़करिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। अब रुके नहीं और आगे चले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अब ये सारा वाक़या मेराज हुआ और इसके बाद गुफ्तगू हुई और मैंने जुबान उस गुफ्तगू को बयान किया और रब्बे कायनात ने उस गुफ्तगू के कलिमात को नमाज में नाज़िल कर दिया और फरमाया अगर किसी ने वाक़या मेराज की अत्तहियात मानी इन बाबरकत कलिमात को ना पढ़े तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, पढ़ना होगा। अज़ीज़ान मुहतरम जरा अंदाज़ा लगाइए और फिर वो अत्तहियात शामिल कर दी गई जो शब-ए मेराज की यादगार है। अल्लाह और महबूब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो अत्तहियात की सूरत में नाज़िल कर दी गई और कहा कि दोस्तों इंसान को हौसला दिया गया और बताया गया मायूस मत हो, नाउमीद मत हो, कमजोर मत समझो, अपने आप को बुज़दिल मत समझो, तुम तो उस नबी की उम्मती हो जो मेराज की शान रखते हैं, जो मौका की सैर करते हैं। तुमको मायूस होने की जरूरत नहीं है, जालिमों के जुल्म से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर नमाज में मेराज के बारे में रखा गया है, इसलिए रखा गया है चाहे फर्ज हो, चाहे फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, नफिल हो। अजीज दोस्तों हर नमाज में अज़ीज़ान किराम में तहियात रखी गई है ताकि ये एहसास जब जब बंदा खुदा की इबादत करे उसको ये एहसास मिले कि मैं तो मेराज वाले नबी का उम्मती हूं। दुनिया की कोई मुश्किल इस्लाम को बुलंद होने से रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को कामयाब होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि हम उस नबी को उम्मती है जिनका मुकाम बहुत ही बुलंद वाला है। तो अज़ीज़ान मुहतरम इस तरह ये वाक़या मेराज ये सारा वाक़या हुआ। आप स्पीड की बात देख चुके हैं, तरक्की को देख चुके हैं, ये तरक्की का हालत क्या है। गूगल सर्च पर एक सेकंड में 99,000 सर्च हो रहे हैं। दोस्तों सरवरे कोरोना का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के वाक़ये के बाद जब वापिस आए, वापिस तशरीफ लाए तो जिस बिस्तर पे गए थे, जिस बिस्तर को छोड़कर गए थे उसकी गर्मी बाकी थी और जिस पानी से वुज़ू किए थे वो पानी अभी हरकत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रफ्तार है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अज़ीज़ान गिरामी ये स्पीड है मेराज के मोज़िज़े की। आप बताइए भला अजीज दोस्तों दुनिया क्या जानती है वो सातवां आसमान वो अर्श-ए इलाही। दुनिया के ख्याल में भी अज़ीज़ान मोहतरम कोई ऐसा तसव्वुर नहीं आता सातवें आसमान और अर्श-ए इलाही का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नबी पाक की शान ये है कि उनके कदम अर्श-ए इलाही को लगे, अर्श-ए इलाही पर पहुंच गए हैं। अरे जिनके कदमों की ये शान है उस ज़ात की अज़मतों का आलम क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम याद रखें ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रफ्तार है। ये है आज दुनिया के सामने चैलेंज है, रशिया के सामने, सुपर पावर्स के सामने, अमेरिका के सामने, नाटो के सामने, यूरोप के सामने, इस्लाम के दुश्मनों के सामने, यहूद और नसारा के सामने पूरा चैलेंज है इस्लाम का। अगर है तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत तो लाओ, बताओ मेराज के मुझे की स्पीड का मुकाबला करके बताओ। या रसूल अल्लाह। आज दुनिया सिर्फ अज़ीज़ान गिरामी नैनो सेकंड की बात कर रही है, सेकंडों की बात कर रही है। अरे ये बात करने वालों तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, मुस्तफा ने कर दिखा दिया, सेकंडों में सदियों का सफर कर दिखा दिया। इसलिए कहा गया कि दोस्तों याद रखो दुनिया में कोई दीन, कोई मजहब अज़ीज़ान गिरामी वो कामयाब और कामयाब नहीं है सिवाय इस्लाम के। इसलिए कि इस्लाम वो सच्चा दीन है, इस्लाम वो तरक्की याफ्ता दीन है, इस्लाम वो मॉडर्न दीन है कि इसमें मेराज का वाक़या बयान किया गया है। अगर तुम तरक्की चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो फिर इस्लाम कबूल करना होगा, इस्लाम मानना होगा, इस्लाम जो है इसकी पैरवी करनी होगी, जब जाकर तरक्की और कामयाबी की मंजिलों पर पहुंच सकते हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये इस्लाम का तसव्वुर तरक्की और कामयाबी है। तो अज़ीज़ान गिरामी ये जो है बस मेराज के वाक़ये की चंद बातों को मैंने पेश कर दिया। अब इसमें इसलिए भी पेश किया रब्बुल आलमीन ने उसकी एक हिकमत ये है कि हुजूर की फजीलत सब पर ज़ाहिर हो जाए। क्या हुजूर की फजीलत सब पर ज़ाहिर हो जाए, यानी मेराज के वाक़ये में इसलिए लाया गया ताकि लोगों को मालूम हो जाए
عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا یہ دیکھو، اگر تم سچے عیسیٰ سے محبت کرتے ہو اور موسیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات میں مصطفیٰ کی امامت کو قبول کرتے ہیں، تم کو بھی قبول کرنا ہے۔ ہمارے نبی کی امامت کو قبول کرتے ہیں، ہمارے نبی کی عظمتوں کو قبول کرتے ہیں، ہمارے نبی کی شان کو قبول کرتے ہیں، ہمارے نبی کے مرتبے کو قبول کرتے ہیں، ہمارے نبی کی اللہ کے پاس مقام و مرتبے کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی تو بہت ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے اس بات کو یاد رکھے، تو لہذا ان قوموں کو چاہیے عیسائیوں حسد کرنا چھوڑ دو، جلنا چھوڑ دو، یہودیوں دشمنی چھوڑ دو۔ اگر سچے تم موسیٰ کے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح آ جاؤ، امت مصطفیٰ میں شامل ہو۔ تو عزیزان محترم، اس طرح جو ہے یہ بات واضح ہوئی اور پھر بات کو عزیزان گرامی عظمت کو واضح کر دیا گیا اور عظمت واضح ہوئی۔ اور پھر اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، اس کے بعد کہا چھوڑو، آپ نے چھوڑا، وہ اژدہا ہو گیا، آپ پریشان ہوئے، تو پھر کہا پکڑو، آپ بولے یہ تو اژدہا ہے کیسے ہو، کاٹ غصہ پکڑو، اس کے منہ میں پکڑو، ہاتھ ڈالو، آپ پکڑے تو پھر وہ لکیر عصا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ مشق کرائی اور دکھا کر بتایا کہ موسیٰ جب مقابلہ ہوتا جادوگروں سے تو عصے کو چھوڑ لاؤ، یہ اژدہا بن جائے گا، پھر اس کو پکڑے تو آپ کے ہاتھ لگتے ہی وہ عصا بن جائے گا، تاکہ اس واقعے کے وقت آپ پر کوئی ہیبت طاری نہ ہو، اس لیے اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس ڈھول پکارے گا جو فرعون کھڑا کرنا ہے، گوہر کر کر پوری خلق کو جمع کرنا ہے، پورے ملک کو جمع کرنا ہے، پورے جادوگروں کو جمع کرنا ہے، اس کا کوئی واب اور کوئی اس کا اثر آپ پر نہ ہو، اس لیے اللہ نے پہلے دکھا دیا۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج میں اس لیے بلایا تاکہ حضور کو یہ بتا دے کہ یا رسول اللہ، اے حبیب خدا، یہ حشر کا میدان برپا ہوگا، قیامت واقع ہوگی اور نسا نسی کا عالم ہوگا، ہولنا کی ہوگی، بڑا سخت دن ہوگا، اس دن کا کوئی اثر آپ پر نہ ہو، کیونکہ آپ کو شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے۔ اس لیے معراج میں سب کچھ دکھا دیا، بلا کر دکھا دیا، جنت دکھا دیے، درجات جنت دکھا دیے اور جہنم کے طبقات دکھا دیے، عزیزان محترم ساتوں زمین و آسمان دکھا دیے۔ اس لیے دکھا دیا تاکہ کل حشر کے میدان میں یوم محشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب و استقبال کے ساتھ اپنی شان محبوبیت کے ساتھ شفاعت کا دروازہ کھولیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی، اب اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کو بتانے کے لیے بات ختم کر رہا ہوں کہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ دنیا والوں پریشان مت ہو کہ یہ زمین اور آسمان، یہ جو کچھ ہے زمین اور آسمان، آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا جو ہے ایسٹرو فزکس کی بات کر رہی ہے، یعنی آج دنیا بات کر رہی ہے عزیزان گرامی آسمان کی، آج دنیا بات کر رہی ہے عزیزان محترم، آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا چاند کی بات کر رہی ہے، ستاروں کی بات کر رہی ہے، سیاروں کی بات کر رہی ہے، آج دنیا چاند پر جو ہے کالونی آباد کرنے کی بات کر رہی ہے، آج مریخ پر پہنچنے کی بات ہو رہی ہے، آج راکٹ کی بات ہو رہی ہے، رفتار کی بات ہو رہی ہے، آج جو ہے اسپیس شپ کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوستو معراج کے واقعے کو بیان کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ دوستو یاد رکھو یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب تمہاری دسترس میں ہے، یہ سب تمہاری دسترس میں ہے، اگر چاہو تو تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک۔ ہمارے حبیب نے کیسے بات کیا؟
आसमानों को पार कर लिया, मुखाने बुलंद को पार कर लिया, तो इस तरह तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो। और सूरह रहमान में फरमाया इंसानों और जीनों को अगर वो चाहते हैं तो जमीन के किनारों से निकल कर देखो, जब वो जमीन के किनारों से निकल जाएंगे तो जहां जाएंगे हमारी सल्तनत को पाएंगे, हमारी बादशाह को पाएंगे, इससे ज्यादा वो हमारी हुकूमत से, हमारी सल्तनत से बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर फरमाया कभी यही आला रब्बी को मातू कसीबा, तुम अल्लाह की किन किन निशानी को, किन किन नेमतों को लाओगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम इस तरह जो है रब्बे कायनात ने मेराज के वाक़े से ये बताया चांद का सफर किया जा सकता है, मरीख पर पहुंचा जा सकता है, सितारों में आया और जाया जा सकता है, और इसकी तरफ इशारा कर दिया गया। तो अज़ीज़ान ग्रामी इस तरह से ये हिकमत मेराज के वाक़े की थी। और फिर बात खत्म करूँ, अज़ीज़ान मोहतरम मेराज का वाक़या एक बड़ी अज़मतों का वाक़या है, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़ामे बुलंद को बयान फरमाया है। अगर घर में वालिद के रोजगार में तरक्की हो जाए, थोड़ा रोजगार ज्यादा हो और भाई को प्रमोशन मिल जाए और इसकी स्केल जो है 16 से 17 लेवल पर आ जाए तो खुशी होती है या नहीं होती है? होती है। तो दोस्तों अल्लाह ने हमारे नबी को आज के दिन मेराज का मौजिज़ा अता फरमाया, मुखाने बुलंद अता फरमाया, इस पर खुश होना चाहिए। तो लिहाजा खुश होइए, खुशियां मनाइए और इस रात में अल्लाह की खूब इबादत कीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।